Hello students, today we will learn preparation of fixed asset account in cash flow statement. How we will prepare fixed asset account when in balance sheet we are given book value of asset. Book value means we are having the value of asset after charging depreciation. यानी बैलेंस शीट में जो हमें वैल्यू गिवन है एसेट की वो आफ्टर डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद गिवन है. दैट मीन्स when we will post the balance of opening fixed asset, that will be written on the debit side of fixed asset account. We know that already depreciation has been charged, so this opening balance is book value, opening book value of fixed asset. Then on the credit side we will write the closing book value of fixed asset. Now if in question it is given the asset has been sold, we know that asset decreases on credit side. Credit side पर asset का fall record होता है. So the sale of asset will be recorded on the credit side. Now after that we will calculate the amount of profit or loss incurred at the time of sale of this fixed asset. If there will be loss, this loss will be written on the credit side. लॉस होता है अगर एसेट की सेल पर, दैट लॉस विल बी ट्रांसफर्ड ऑन द क्रेडिट साइड. व्हाट इफ द बिजनेस इज हैविंग प्रॉफिट, then profit will be written on the debit side, and then we will transfer the balance of current year depreciation. यही वो पॉइंट है जहां मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कमिट मिस्टेक. अब मिस्टेक क्यों होती है? In question we are also given the value of accumulated depreciation. हमें क्वेश्चन में accumulated depreciation भी गिवन है, करंट ईयर की डेप्रिसिएशन भी गिवन है. हमें सिर्फ करंट ईयर की डेप्रिसिएशन ही ट्रांसफर करनी है फिक्स एसेट अकाउंट में, बिकॉज accumulated depreciation will only be used for calculating the amount of profit or loss. That means when we are preparing fixed asset account, only current year depreciation will be recorded, because book value means previous year की depreciation हम already subtract कर चुके हैं. हमें सिर्फ current year की depreciation ही अपने asset account में reflect करनी है. After recording current year depreciation, profit or loss on sale of fixed asset, amount of sale, balancing figure can be purchase of fixed asset. I hope preparation of fixed asset account when book value is given in balance sheet is clear. इसे और अच्छे से समझने के लिए 11th क्लास के कॉन्सेप्ट से इसको थोड़ा सा रिलेट करते हैं. आप लोगों ने 11th क्लास में एसेट अकाउंट प्रिपेयर करना सीखा था. Whenever we used to buy an asset, that asset will increase account on debit side and we will write to cash account. Journal entry अगर हम रिकॉल करते हैं, एंट्रीज फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. फिक्स एसेट अकाउंट के डेबिट साइड में we will write cash account. Now this asset will decrease on credit side. क्रेडिट साइड पर ये एसेट डिक्रीज होगी और डिक्रीज का रीजन क्या है? डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन चार्ज की we got balance CD. Next year this balance CD will be balance brought down. Again depreciation charge हुआ, balance carried down. Next year again brought down. Now in this year let's say we are selling that asset. So sale कहाँ आएगी? क्रेडिट साइड आएगी, बाय कैश. सी यहाँ पर आपको दिख रहा है सिर्फ करंट ईयर की डेप्रिसिएशन ही रिफ्लेक्ट हो रही है, क्योंकि प्रीवियस ईयर की डेप्रिसिएशन तो हम ऑलरेडी इस अकाउंट में चार्ज करते आ रहे हैं, पहले साल दूसरे साल. So in third year we will calculate only the amount of depreciation for current year. अगर लॉस होगा it will be written on the credit side of fixed asset account, और अगर प्रॉफिट होगा it will be written on the debit side of fixed asset account. अब इसे हम अपने इस ईयर 12th क्लास के कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो फिक्स एसेट अकाउंट बनाना है उससे रिलेट करते हैं.
हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस जो गिवन एसेट के वो यही वाले बैलेंसेस हैं. दिस इज आवर ओपनिंग बैलेंस एंड लेट्स से अगर हमारे पास कोई रिमेनिंग एसेट बच जाती है दैट विल बी आवर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट. लेट्स से दैट विल बी आवर बैलेंस CD. Now we can see why we are not transferring accumulated depreciation account here. आपको इस अकाउंट से बहुत क्लियरली पता लग रहा है कि प्रीवियस ईयर की डेप्रिसिएशन हम ऑलरेडी चार्ज कर चुके हैं. सिर्फ करेंट ईयर की डेप्रिसिएशन ही यहाँ रिफ्लेक्ट होगी. और ये करेंट ईयर की जो डेप्रिसिएशन है ये उस एसेट पर है जो सेल हो रही है और उस एसेट की भी हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की है जो हमारे पास रिमेनिंग है. सो करेंट ईयर इंक्लूड डेप्रिसिएशन ऑफ बोथ the asset that has been sold as well as the asset which is lying with the business. लॉस होगा तो क्रेडिट साइड आएगा, प्रॉफिट होगा तो डेबिट साइड आएगा. The purpose of preparing this account, fixed asset account, was only to clear your doubt कि क्यों हम लोग इस ईयर जब बुक वैल्यू पर एसेट्स गिवन है तो सिर्फ करेंट ईयर की डेप्रिसिएशन को ही ट्रांसफर कर रहे हैं. बुक वैल्यू का मतलब ही है कि इस ओपनिंग बैलेंस में से प्रीवियस ईयर की डेप्रिसिएशन ऑलरेडी सब्ट्रैक्टेड है. तो यानी सिर्फ हमें करेंट ईयर की डेप्रिसिएशन ही चार्ज करनी है. और ये करेंट ईयर की डेप्रिसिएशन उस एसेट पर भी है जो सेल हो रही है. लेट्स से वो 3 महीने रखने के बाद या 4 महीने रखने के बाद सेल हो रही है. दैट इज आल्सो इंक्लूडेड इन दिस और रिमेनिंग एसेट. यू पीपल आर लकी दिस ईयर कि आपको डेट्स नहीं गिवन होंगी, आपको डायरेक्टली अमाउंट गिवन होंगे करेंट ईयर के डेप्रिसिएशन के, accumulated depreciation के, opening और closing balance. So this year preparation of fixed asset account is very easy. And how we can write it? Again I am recapitulating. We will go to the previous slide again. Let us recall again. सबसे पहले बेटा हमने ओपनिंग बैलेंसेस लिखना है एसेट का, फिक्स एसेट अकाउंट का डेबिट साइड. क्लोजिंग बैलेंस लिखना है क्रेडिट साइड. We will write sale on credit side because it is decreasing our asset. We will write amount of profit or loss incurred, loss on the credit side, profit on the debit side. As book value means previous year depreciation has already been subtracted. So we will only transfer current year depreciation to fixed asset account and we will get balancing figure as purchases, cash purchases. I hope now this point is clear to all of you that whenever we are having fixed assets at book value, then only current year depreciation will be transferred to fixed assets account. तो accumulated depreciation का यूज क्या है? Accumulated depreciation जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी ये उस एसेट पर गिवन होगी जिसकी सेल हो रही है. तो हम उसका यूज कहाँ करेंगे? हम उसका यूज करेंगे प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल को कैलकुलेट करने के लिए. और उसके क्या स्टेप हैं? हमें कॉस्ट गिवन होगी उस एसेट की जो सेल कर रहे हैं, हम उसके ऊपर जो भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड वी विल कैलकुलेट बुक वैल्यू. नाउ वी विल कंपेयर दिस बुक वैल्यू विद सेल्स प्राइस. अगर बुक वैल्यू कम है और सेलिंग प्राइस ज्यादा है देन द बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट. और अगर बुक वैल्यू ज्यादा है और सेल्स प्राइस कम है then the business is incurring loss. Coming to next case. Before going to next case, let us solve one question. बैलेंस शीट गिवन है और बैलेंस शीट में हमें एसेट्स की वैल्यू गिवन है, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी. अज्यूमिंग दीज आर बुक वैल्यूज. हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है कि एक एसेट है जिसकी कॉस्ट है 50,000, उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी अभी तक की डेप्रिसिएशन टिल द डेट ऑफ सेल इज गिवन 10,000 और इसे हमने सेल कर दिया 38. डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर इज 30 यानी इस 30,000 में जो एसेट सेल हो रही है
अगर मान लेते हैं कि वो इस ईयर कुछ टाइम रखने के बाद सेल हुई है, उस एसेट की भी डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, और जो रिमेनिंग एसेट है उसकी भी डेप्रिसिएशन इसमें इंक्लूडेड है। करेंट ईयर में मतलब इस ईयर का, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। और अभी मैंने आपको जस्ट प्रीवियस स्लाइड में बताया कि हमें सिर्फ फिक्स एसेट अकाउंट व्हेन इट इज गिवन एट बुक वैल्यू तो करंट ईयर की डेप्रिसिएशन ही ट्रांसफर करनी है। अब ऐसा क्वेश्चन जहां पर हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी गिवन है और करंट ईयर की डेप्रिसिएशन भी गिवन है, हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि इनमें से कौन सी डेप्रिसिएशन है जो इस एसेट अकाउंट में आएगी। जो depreciation is account में आएगी that is current year depreciation, that means during the year depreciation. Now preparation of fixed asset account is very easy. Posting of opening and closing balance बच्चे बहुत enjoy करते हैं। Opening balance we write on the debit side, it is to balance BD, और कितना बैलेंस है बेटा हमारे पास 10 lakh. Closing balance is given 15 lakh. Let's say cost 50,000 है and we are selling this fixed asset for rupees 38,000. So कॉस्ट में से हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट किया सो एज टू कैलकुलेट बुक वैल्यू। हमारी बुक वैल्यू कितनी आ रही है एसेट की, इट इज 40,000। अब हमारी बुक वैल्यू 40,000 है और सेलिंग प्राइस 38 है, यानी बिजनेस को लॉस हो रहा है 22,000 रुपीज का। नाउ आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ दिस वर्किंग नोट वी विल रिफ्लेक्ट इट इन फिक्स्ड एसेट अकाउंट। सबसे पहले हम सेल का अमाउंट दिखाएंगे, हमने कितने का सेल किया इस एसेट को, 38,000 का। हमें लॉस कितने का हो रहा है, दैट वी आर राइटिंग ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ फिक्स्ड एसेट अकाउंट 2,000 रुपीज। Now only current year depreciation will be written on the credit side of this fixed asset account amounting to rupees 30,000, और बैलेंसिंग फिगर हमारे पास कैश परचेज आ रहा है 5,70,000। I hope now preparation of fixed asset account when the value that is reflected in balance sheet is book value is clear to all of you. See, again we recapitulating in theoretical way. If assets are given at book value in the balance sheet, then only current year depreciation, that is depreciation during the year, is recorded in the fixed asset account, whereas accumulated depreciation is used to calculate profit or loss on sale of fixed asset. Now coming to the next part, when assets are stated in balance sheet at cost, that is gross asset without charging depreciation. Accumulated depreciation account or provision for depreciation account is given separately in balance sheet. It is not book cost, it is only cost. When assets are given at cost, जब assets cost पर given है, यानी हमने यहाँ पर अपने एसेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज किया है, वी आर राइटिंग ओपनिंग बैलेंस एट कॉस्ट, वी आर राइटिंग क्लोजिंग बैलेंस एट कॉस्ट। हम एसेट आप अपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का भी ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड ट्रांसफर करेंगे, बिकॉज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट इफ इट इज अ सेपरेट अकाउंट इट इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, और इसी वजह से इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो क्रेडिट में आएगा और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो डेबिट में आएगा। अब हम पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को ही क्लोज करेंगे। लेट्स से अगर क्वेश्चन में हमें जो एसेट सेल हो रही है उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है, वी विल राइट फिक्स्ड एसेट अकाउंट और उसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड ट्रांसफर करेंगे। एंड इन दिस केस करेंट ईयर का जो हमारा डेप्रिसिएशन है दैट विल बी आवर बैलेंसिंग फिगर, और यही वो बैलेंस है जो हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग हेड में ऐड होता है। राइट, नाउ कमिंग टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, अगेन फिक्स्ड एसेट अकाउंट इज वेरी इजी, वी विल राइट अमाउंट ऑफ सेल, accumulated depreciation
और यहाँ पर कौन सा बैलेंस ट्रांसफर होगा, दिस बैलेंस विल बी ट्रांसफर्ड। ये उस एसेट के ऊपर हम डेप्रिसिएशन रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जो सेल हो रही है, उसके ऊपर टोटल डेप्रिसिएशन जब खरीदी थी तब से लेकर सेल तक। एंड व्हाई वी आर राइटिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बिकॉज हमारे पास ये जो ओपनिंग बैलेंस है ये कॉस्ट पर गिवन है, यानी प्रीवियस ईयर की डेप्रिसिएशन भी रिफ्लेक्ट नहीं हुई है, उन्हें भी रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। दैट इज व्हाई वी आर ट्रांसफरिंग accumulated balance of depreciation, and then we will calculate the amount of प्रॉफिट और लॉस, लॉस होगा तो क्रेडिट साइड, प्रॉफिट होगा तो डेबिट साइड, एंड बैलेंसिंग फिगर विल बी आवर परचेसेस। Again, a very easy trick to learn to understand this is, जब भी आपके पास accumulated depreciation या provision for depreciation account given होगा, तब आप एसेट में कौन सी depreciation ट्रांसफर करेंगे, accumulated। और अगर आपके पास accumulated depreciation या provision for depreciation का बैलेंस नहीं given, then this amount will be reflected in asset account। आई होप इट इज क्लियर। एक बार फिर हम इस 12th क्लास के कॉन्सेप्ट को 11th क्लास के कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट करते हैं फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। You all have learned to prepare fixed asset account and provision for depreciation account in your 11th class. You purchase an asset, you reflected that amount on the debit side of fixed asset account. Now you are reflecting it at cost, the price at which you have purchased this asset. Now you are charging depreciation on this asset in provision for depreciation account or accumulated depreciation account. अब ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर इट विल बी आवर ओपनिंग बैलेंस, राइट। अगेन हम एसेट को कॉस्ट पर ही रिफ्लेक्ट करेंगे अपने एसेट अकाउंट में, और इस पर दोबारा से करंट ईयर का, यानी उस ईयर का जिस ईयर पर हम इस बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, उस ईयर का डेप्रिसिएशन अगेन चार्ज करेंगे, इनका टोटल करेंगे, अगेन इट विल बी बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा, जो नेक्स्ट ईयर हमारा ओपनिंग बैलेंस हो गया। नाउ यू आर गिवन इन क्वेश्चन दिस ओपनिंग बैलेंस, आपके पास यही बैलेंसेस गिवन होते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के, जहां पिछले साल के डेप्रिसिएशन चार्ज है। आपने एसेट सेल किया, या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। यू कैन सी, अगर इफ यू कैन रिकॉल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम डेबिट साइड पे जिस सेल करते थे उसकी डेप्रिसिएशन का टोटल रिफ्लेक्ट करते थे, वही बैलेंस हम यहाँ पर अपने एसेट अकाउंट में रिफ्लेक्ट करते हैं। और रिफ्लेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने इस एसेट के ऊपर यहाँ पर डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करके रिफ्लेक्ट नहीं की है। I hope it is clear. Now let us do one question for a better understanding. We are having opening balances of fixed asset as well as accumulated depreciation in this question. Additional information में हमारे पास given है एक asset जिसकी cost है 50,000, उस पर accumulated depreciation है 10,000, उसे sale कर दिया 38,000 का। Now how we will prepare asset account and accumulated depreciation account? सबसे पहले we will transfer opening balance of asset, that is 10 lakh, closing balance that is 15 lakh. Similarly accumulated depreciation account में भी हमने opening balance credit side transfer किया 1 lakh और closing balance transfer किया 1,50,000। Now पहले हम अपने accumulated depreciation account को ही close करेंगे। जो एसेट हम सेल कर रहे हैं, एज आई टोल्ड यू, जो एसेट हम सेल कर रहे हैं उसकी डेप्रिसिएशन जो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, दैट विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन द डेबिट साइड, और हमें कितना अमाउंट गिवन है 10,000। जैसे ही हम ये बैलेंस लिखेंगे वी विल गेट बैलेंसिंग फिगर एज आवर करंट ईयर डेप्रिसिएशन, और यही करंट ईयर की डेप्रिसिएशन हम अपने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में अंडर हेड एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऐड करते हैं। और कितना बैलेंस आएगा हमारे पास, बैलेंस है 60,000।
60,000 कैसे आया? हमने 1,50,000 और 10,000 का टोटल किया, विच इज 1,60,000, subtracting 1,00,000, our balance for current year depreciation will be 60,000. Now ये current year depreciation सिर्फ accumulated depreciation account में आएगा, या fixed asset account में नहीं आएगा. We will write the amount of sale of asset. हमने कितने का सेल किया इस एसेट को? 38,000 का, और इस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है? 10,000. सी, एक एसेट जिसकी कॉस्ट थी 50,000, कॉस्ट ऑफ एसेट वाज 50,000, उस पर हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट किया 10,000. So what is the book value? Book value is 40,000, and we sold this asset for 38,000. That means the business incurred a loss of ₹2,000. और लॉस है तो वो कहाँ रिफ्लेक्ट होगा? वो फिक्स्ड एसेट अकाउंट में क्रेडिट साइड रिफ्लेक्ट होगा. So we will reflect loss on sale of asset as ₹2,000. Now the balancing figure will be cash purchases, which is equal to 5,50,000. अगेन जस्ट अ शॉर्टकट. अगर आपको और क्विक इसको अंडरस्टैंड करना है, जब भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट होगा तब एसेट अकाउंट में कौन सा आपको डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करना है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. और अगर हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं है तब हम ये करंट ईयर की डेप्रिसिएशन यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर देंगे, जैसे कि हमने अपने सबसे पहले केस में किया था, जहां हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं था. वी डोंट हैव, if we don't have accumulated depreciation account, then current year depreciation will be reflected on the credit side of fixed asset account. And if we are having accumulated depreciation account, then that balance of accumulated depreciation that we have calculated on the asset sold will be transferred on the credit side of asset account. I hope with this preparation of fixed asset account is clear to all of you. Thank you for watching this video. Stay connected.